افکار اسلامی کے سرپرست اور نہج البلاغہ اور حضرت امیر المومنین کے کلام کی نشر و اشاعت میں بہترین کاوشیں کرنے والی شخصیت اور حضرت کے کلام کی نشر و اشاعت میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی شخصیت سرپرست مرکز افکار اسلامی حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ مقبول حسین علوی صاحب، جو والدہ کے انتقال کی وجہ سے اس پروگرام میں پاکستان میں تشریف لائے اور اس پروگرام میں بھی تشریف لائے۔ ابھی رات کو ان کی فلائٹ ہے، انہوں نے پہنچنا ایئرپورٹ، لہٰذا میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مہمان گرامی سے میں معذرت کروں گا کہ وہ میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، تاخیر نہ ہو جائے، میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور شرکائے کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ جناب علامہ مقبول حسین علوی صاحب ہماری محفل میں صحافی برادران جن میں انصار زاہد صاحب تشریف فرمائے اور ان کے ساتھی، ہم ان کو بھی کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں قبلہ علامہ مقبول حسین علوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور میزبان کی حیثیت سے شکریہ بھی ادا کریں اور نہج البلاغہ کے موضوع پر کہ جو ان کا موضوع ہے اور اس موضوع پر وسیع مطالعہ رکھتے ہیں خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ قال امیر المؤمنین نحن امراء الکلام۔ نہ وقت ہے اور نہ عادت ہے کہ گفتگو کو طول دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام چونکہ عید غدیر، عید ولایت کے موقع پہ کتاب ولایت کے تعارف کے لیے انجام دیا گیا ہے، لہذا تمام موالیان حیدر کرار کا یہ اپنا فریضہ بنتا ہے کہ ولایت کے ایام میں کتاب ولایت کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے غدیر کے موقع پہ تحفہ کے طور پر پیش کریں۔ آپ باہر نمائش میں دیکھ چکے ہیں، افکار اسلامی کی طرف سے تقریباً 23-24 قسم کی مختلف کام پرنٹنگ صورت میں نہج البلاغہ پہ موجود ہیں۔ ایک ہدف ہے افکار اسلامی کا اور میں آپ سب شرکاء کو اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ ہم کسی مومن کے پاس اگر جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں فلاں اچھے بیکری کی مٹھائی لے کے جائیں، جو آج کل ڈاکٹر صاحبان بھی تشریف فرمائے، خود نقصان دہ ہے۔ آئیے عزیزان کوشش کریں کسی مومن کے پاس جائیں تو کلام امیر المؤمنین بطور ہدیہ لے کے جائیں۔ یہ نہج البلاغہ ہمارا 2 سالوں کے اندر یہ 5واں ایڈیشن ہے اور یہاں ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں 500 نہج البلاغہ چاہیے تاکہ ہم مومنین کو ہدیہ کریں۔ یہ ہے ایک اظہار محبت و اظہار ولایت علی بن ابی طالب۔ باقی رہ گیا نہج البلاغہ کے بارے میں کیا کہوں۔ یہاں لاہور ہی میں ایک شخصیت گزری ہیں، ایران سے تشریف لائے تھے، علامہ عبدالعلی ہراوی۔ ان کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، وہ ان کے ایک شاگرد مواعظ حسنہ نامی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ علامہ ہائری جرمنی میں ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور جب وہاں جاتے ہیں تو عربی ڈپارٹمنٹ کا ایک پروفیسر ہاتھ میں ایک کتاب لیے لہرا رہا ہے، مصطفیٰ کی نبوت کا ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ علامہ عربی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ قرآن مجید ہوگا اور میں قریب گیا جو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں نہج البلاغہ تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس کو قرآن کہنا چاہیے تھا، اس نے نہج البلاغہ کیوں کہا؟
नहजुल बलागा के लिए इतना जुमला मैं कहूँ कि उस अंग्रेज और जर्मन प्रोफेसर ने कहा जिस उस्ताद के शागिर्द ऐसे हों वो उस्ताद कितना अजीम होगा। मैं अगर यहाँ गुफ्तगू अपनी तमाम करके चला जाऊँ तो मैं समझता हूँ कि ये अली के तारुफ के लिए कहीं लहराइए नहजुल बलागा को और बताइए ये है मुस्तफ़ा का वो शागिर्द जो ऐलान करता है कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे रसूल ने यूं इल्म सिखाया जैसे परिंदा अपने बच्चे को मुंह में दाना देता है। और अगर यही अल्लामा अली नक्वी साहब की किताबों का मुताला जिन्होंने किया है, 5 जिल्दों में उनकी तकारीर शाये हैं, वहाँ दूसरी जिल्द में नक्कन साहब का, और मैं अगर भूल नहीं रहा तो यही लाहौर और गिरद नवाह में उनका खिताब है, फरमाते हैं कि एक अंग्रेज, तफसीली वाक़या है, एक अंग्रेज को नहजुल बलागा के बहुत सारे खुतबे याद थे। वो कहते हैं कि अगर आप मुसलमान नहजुल बलागा आसमानी किताब हमसे मनवाते तो हम मानने के लिए तैयार थे, लेकिन चूंकि कुरान में हाथ काटने के और किसास लेने के और मारने के और मरवाने की बातें हैं वो आप हमसे मनवाते हैं, हम उसे कैसे माने। नहजुल बलागा मानवाएं तो हम उसको आसमानी किताब मानने के लिए तैयार हैं। नक्कन साहब ने उस वाक़े में लिखा है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था उसको मुखातब होके उन्होंने अंग्रेज को कहा कि जिस किताब को आप आसमानी किताब मानने के लिए तैयार हैं वो साहिब किताब अली कहता है कि कुरान ही आसमानी किताब है, और एक एक खुतबे में 40-40 फज़ाइल कुरान बयान करता है। अजीज़म, तो ही अगर आप कुरान देखना है तो मुस्तफ़ा के इस शागिर्द से मुस्तफ़ा की अजमत देखनी है तो इसी नहजुल बलागा से मुख्तसर करूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अल-उज़्मा फ़ाज़िल लनकरानी फरमाते थे नहजुल बलागा की अज़मत के लिए इतना ही काफ़ी है कि कह दो ये अली का कलाम है। हाँ, नहजुल अली का कलाम। और एक अरब शायर ने बड़ा खूब लिखा, उलमा तशरीफ़ फरमाएं, वो कहते हैं कलाम अलीयन कलामुन अलीयुन मा क़ालहुल मुर्तज़ा मुर्तज़ा। हाँ, अली का कलाम अली कलाम है, जो मुर्तज़ा ने कहा वो सारे ज़माने का मुर्तज़ा और पसंदीदा है। रह गया नहजुल बलागा में अगला मौजू, मैंने जो जुमला कहा मुझे पसंद है जुमला, और हमने खुसूसियत के साथ हर नहजुल बलागा की इब्तिदा में इस जुमले को हमने नकल किया है और शाये कराया है। यह है खुतबा नंबर 230 का जुमला। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं नहनु उमराउल कलाम। मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम ने तर्जमा किया, हम अहले बैत अकलीम सुखन के फरमा रवा हैं। अब जो अमीर कलाम है उसका कलाम आपके पास है। मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम ने, अभी मुझसे एक अजीज पूछ रहा था ये मुफ्ती साहब का तर्जमा क्यों इतना मकबूल है। मैंने कहा कलाम अमीर को सैयद रजी ने वो हिस्सा जमा किया जिस हिस्से में जनाब अमीर की अरबी बलागत मिराज की थी, तो अगर उस मिराज फसाहत बलागत अरबी का तर्जमा उर्दू अदबियात को कमाल में देखना है तो वो है तर्जमा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम। क्या कहा जाए, और बस इसी पे शुक्रगुजार हूँ खुसूसियत के साथ इस मरकज़ का जिन्होंने मौका दिया, साथ दिया, और एक एक फर्द का जिन्होंने इस प्रोग्राम को, मैं तो 12 बजे पहुंचा और अभी थोड़ी देर बाद अजीज़ान हमारे जनाब किबला अनीसुल हसनैन साहब, अजीज़म लियाकत अवान साहब और दूसरे बुजुर्गान बिलखुसूस जिन्होंने साथ दिया है, अगर कोई नाम रह गया तो फिर वो गिला होगा। सब मैं समझता हूँ ये हम सब का फरीज़ा है, इसको याद रखिएगा। विलायत 2-3 मिनट और आपके लेता हूँ। ईद गदीर है, ईद विलायत है। मवालियान हैदर करार, हमें वो हाथ याद रखने चाहिए जिस हाथ में हाथ अली का लेके पैगंबर फरमा रहे थे मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीउन मौला। लेकिन आखिरी बात ये कर रहा हूँ, वो अली का हाथ नबी के हाथ में भी देखिए, लेकिन अली के इस हाथ पे नजर रखिए
नहजुल बलागा के तीसरे हिस्से कलमात किसार 147 में अली का वही हाथ सीने की तरफ बढ़ रहा है। अमीरुल मोमिनीन उसी हाथ से अपने सीने की तरफ इशारा करते हैं, हा होना इल्मन जम्मा, यहाँ इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद है। फिर फरमाते काश इसको लेने वाला कोई मिल जाता। ये नहजुल बलागा का कलिमात 147। आइए गदीर के मौके पे उस हाथ को भी देखें जिसको अली रो के कह रहे हैं हा होना इल्मन जम्मा, लेकिन कहते हैं कुमैल काश कोई मिल जाता। कोई मिला तो या ज़हीन नहीं था या अमीन नहीं था। आइए ज़हीन और अमीन बन के गदीर के मौके पे हम ऐलान करें, या अली अगर नबी के हाथ में आपका हाथ हमें याद है, मन कुन तो मौला हो की हदीसें हमें याद हैं, तो आपका ये दर्द भी हमें याद है। और आपने जो दावे किए हैं नहजुल बलागा में भी सलूनी सलूनी कबलन तफकिदुनी, हम आपके उस इल्म को कोशिश करेंगे घर घर पहुंचाएं। उसका एक तरीका यह है गदीर मनाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया अभी ऊपर, तो 3 अजीजान बैठे थे वहां बात कर रहे थे खुतबा नंबर 3 की इस जुमले की जो बैनर के ऊपर लिखा हुआ है, यनहदु अन फैल, मुझसे इल्म के हिकमत के वक्त नहीं रहा, ये समुंदर आगे जाते हैं। कोशिश कीजिए घरों में मजलिस सजाइए, नहजुल बलागा को खोल के कलाम अली पढ़िए, हदीस मुस्तफ़ा का ये अमली सबूत होगा। क्या ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। परवरदिगार तमाम अहबाब की ये कोशिश कबूल फरमाए और दूर दूर से हमारे मेहमानाना निगरानी बड़ी अजीम शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं। परवरदिगार अमीरुल मोमिनीन की मज़लूमियत का सदका इन सब की इज़्ज़तों में इजाफा फरमाए। हमें भी गाँव में याद रखिएगा, चूँकि मुझे भी 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना है। परवरदिगार सफ़र बखैर फरमाए। और आप अहबाब के ये मैं बाज़ अहबाब को कह रहा था, ये एक चिराग जला है, इसको आपने और रोशन करना है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।